Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am discussing about new historicist critic whose name is Stephen Greenwald. So friends, before beginning this lecture, I want to inform you that I have made a separate video lecture in which I have discussed about new historicism background in detail. So friends, I recommend you to please listen that lecture so that you are able to clear your concepts regarding what historicism is. And now let's proceed. And friends, I am explaining everything in Hindi as well as in English language. So first of all, I am giving introduction about Stephen Greenblatt. So friends, इनका पूरा नाम था स्टीफन जे ग्रीनब्लैट. ये अमेरिकन शेक्सपियरन लिटरेरी हिस्टोरियन एंड ऑथर थे. कि ये अमेरिकन शेक्सपियरन थे, मतलब इनको अमेरिका का शेक्सपियर बोला जाता था. ये लिटरेरी हिस्टोरियन थे एंड साथ ही साथ ऑथर थे. He was born on 7 November 1943 and currently he is alive and he is of age 77 years, and he was born on in a place called Boston in Massachusetts in US. And now I am telling about various type of awards he received. First one is Pulitzer Prize for General Non-Fiction. Second is National Book Award for Non-Fiction. Please remember these prizes which he received. First is Pulitzer Prize for General Non-Fiction. Second is National Book Award for Non-Fiction. Now let's talk about his books. So friends, these books can be asked in UGC NET exam. So please remember names of all books written by Stephen Greenblatt. So first is The Power of Forms in English Renaissance. The Power of Forms in English Renaissance is his first book. Second is Towards a Poetics of Culture. Towards a Poetics of Culture. Third is Sir Walter Raleigh, Renaissance Men and His Roles. Fourth is Renaissance Self-Fashioning, From More to Shakespeare. Fifth is Shakespearean Negotiations, Circulation of Social Energy in Renaissance England. Sixth one is Practicing New Historicism. Seventh one is Rise and Fall of Adam and Eve. Eighth one is Renaissance and Wonder. Friends, I suggest you to please remember names of all books written by Stephen Greenblatt, because any of the books can be asked in a question as a question in UGC NET exams. So now I am heading to various types of concepts given by Stephen Greenblatt. So first concept is he talks about his views on Shakespeare. So in which he says he was the first person to use new historicism. कि ये जो है स्टीफन ग्रीनब्लैट पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था जिसका नाम था न्यू हिस्टोरिसिज्म. और किस वर्क में यूज़ किया था? पावर ऑफ forms in English Renaissance. Please remember this. It can also be asked in UGC NET exam if you are preparing for your UGC NET exams. So please remember this. And he talks about क्वीन एलिज़ाबेथ इंग्लैंड. सो इस बुक में जो है मतलब न्यू हिस्टोरिसिज्म ये जो टर्म थी ये इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ किया था ये बताने के लिए, मतलब एलिज़ाबेथ के टाइम पर, क्वीन एलिज़ाबेथ के टाइम पर इंग्लैंड की कैसी मतलब स्थिति थी, यानी कैसी मतलब सोशल पॉलिटिकल कल्चरल कंडीशंस जो है एग्जिस्ट करा करती थी क्वीन एलिज़ाबेथ के टाइम पर इंग्लैंड में. देन ही डिस्कसेस एलिज़ाबेथ हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स शेक्सपियर प्ले रिचर्ड टू. कि मतलब इसमें जो है स्टीफन ग्रीनब्लैट डिस्कस करते हैं कि एलिज़ाबेथ की जो थी दुश्मनी थी शेक्सपियर के प्ले से जिसका नाम था रिचर्ड टू. Please remember this point also. It can also be asked in UGC NET exam. So he discusses Elizabeth hostility towards Shakespeare's play Richard II. कि मतलब एलिज़ाबेथ जो थी शेक्सपियर के प्ले जो कि जिसका नाम था रिचर्ड II, इसको डिसलाइक करती थी एलिज़ाबेथ. लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज हिस्टोरिकल इन नेचर. बोला जाता है कि ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है
हिस्टोरिक इन नेचर का मतलब ये है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो अकॉर्डिंग टू न्यू हिस्टोरिसिस्ट अप्रोच, तो साथ ही साथ उस टेक्स्ट को ही मत पढ़ो, साथ ही साथ उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करो। सो इस सेंस में लिखा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज हिस्टोरिक इन नेचर। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ पोएटिक्स ऑफ कल्चर, जिसे हम बोलते हैं इट इज़ अ टर्म गिवन टू न्यू हिस्टोरिसिज्म। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो पोएटिक्स ऑफ कल्चर है, इस टर्म को जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म के लिए यूज़ किया गया है, न्यू हिस्टोरिसिज्म के लिए यूज़ किया गया है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। देन स्टीफन ग्रीनब्लैट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन दिस टर्म। रिमेंबर दिस कि न्यू हिस्टोरिसिज्म इस टर्म को जो है सबसे पहले किसने कॉइन किया, जिनका नाम था स्टीफन ग्रीनब्लैट। इट सीक्स टू रिवील द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड द सोशो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो कि रिवील करती हैं कि मतलब जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट मत पढ़ो। जैसे मैंने आपको, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे तो मैंने उसमें आपको न्यू क्रिटिसिज्म भी पढ़ाया था। सबसे पहले जब मैंने लेक्चर्स बनाने की शुरुआत की थी, सबसे पहले मैंने न्यू क्रिटिसिज्म से शुरुआत की थी लिटरेरी थ्योरी की, जिसमें मैंने बताया था कि न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग ये होता था कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बताते थे, न्यू क्रिटिसिज्म को मानने वाले क्रिटिक्स बोलते थे कि सिर्फ़ और सिर्फ तुम टेक्स्ट को पढ़ो, बाकी जो है ऑथर की हिस्ट्री बैकग्राउंड ये जानने की कोशिश मत करो। बट न्यू हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसको मानने वाले क्रिटिक्स बोलते थे कि जब भी तुम टेक्स्ट को पढ़ते हो तो सिर्फ तुम टेक्स्ट को मत पढ़ो, साथ ही साथ उसका हिस्टोरिकल और सोशल बैकग्राउंड जानने की भी कोशिश करो एंड देन टेक्स्ट को एनालाइज करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड कॉन्सेप्ट गिवन बाय स्टीफन ग्रीनब्लैट। सो सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी। सो इसका क्या मतलब है सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी, कि वो बताते हैं कि ऑल थिंग्स सर्कुलेटेड इन सोसाइटी, कि हर चीज़ जो है सोसाइटी के इर्द गिर्द जो है सर्कुलेट होती रहती है, जैसे पावर, चेरिश्मा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, कलेक्टिव ड्रीम्स, एंजाइटी, रिलीजन, ये सारे जो है सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमते हैं। पावर भी घूमती है, चेरिश्मा भी, सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी, कलेक्टिव ड्रीम्स भी, और एंजाइटी भी, और रिलीजन भी। Then everything produced by the society can circulate unless it is deliberately excluded from circulation, कि ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में तब तक घूमेंगी जब तक जो है इन्हें जो है तब तक घूमेंगी जब तक ये सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर एक बार इन चीज़ों को जो है सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाए तो ये जो है ये सारी चीज़ें मतलब सोसाइटी के अराउंड नहीं घूम पाएगी। और उन चीज़ों का मैंने नाम बताया था, जैसे पावर, चेरिश्मा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, कलेक्टिव ड्रीम्स, एंजाइटी, रिलीजियस। तो स्टीफन ग्रीनब्लैट का कहना है कि जो भी सोसाइटी में प्रोड्यूस होता है, जो भी सोसाइटी में प्रोड्यूस होता है वो सारा जो है सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमता है। एंड ये तब तक घूमता है जब तक जो है ये सोसाइटी के साथ जो है मतलब के अंदर सर्कुलेट करता है। अगर एक बार इनमें से किसी भी चीज़ को जो है एक्सक्लूड कर दिया जाए, फिर ये जो है अपने आप ही जो है सोसाइटी के अराउंड सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा। एनर्जी विच मूव्स थ्रू सोसाइटी एंड पावर्ड बाय आर्ट दैट प्रोड्यूसेस दीज इमोशंस, कि ये जो है एनर्जी जो है ये मूव करती रहती है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के थ्रू मूव करती रहती है। ये सारी एनर्जीज़ जो है ये सोसाइटी के अराउंड जो है मूव करती रहती है। एंड पावर्ड बाय आर्ट, और जो है मतलब आर्ट ने जो है इन सब चीज़ों को जो है इस एनर्जी को जो है पावर दे रखी है। और फिर क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं उससे इमोशंस। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये इमोशंस होंगे, EMOTIONS। प्लीज़ रिमेंबर दिस, इमोशंस। हाउ अ वर्क रिटन बाय अ डेड ऑथर ऑफ अ डेड कल्चर कैन स्टिल बी रेलिवेंट टुडे, कि मतलब स्टीफन ग्रीनब्लैट बताते हैं कि एक डेड ऑथर होता है, उसका लिखा हुआ वर्क जो है आज तक उसको जो है रेलेवेंस मिलती है, क्योंकि उसका जो वर्क है द सोशल एनर्जी विच इज़ देयर इन द टेक्स्ट, क्योंकि जो उस टेक्स्ट के अंदर जिन सोसाइटीज़ मतलब जिस सोसाइटी की रियलिटीज़ को ऑथर डिपिक्ट करता है वो आज भी
हमारी सोसाइटी में भी वो एग्जिस्ट करती है. How a work written by a dead author of a dead culture can still be relevant today because the social energy which is there in the text is still circulating in the society. तो स्टीफन ग्रीन ब्लैड बताते हैं कि जो सोशल एनर्जी होती है टेक्स्ट की, वो आज भी जो है इस सोसाइटी के अराउंड मतलब सर्कुलेट कर रही है. इसलिए जो है डेड ऑथर का वर्क जो है आज भी जो है उसकी रेलेवेंस है, यानी इम्पोर्टेंस है. इट कंटेन्स एनर्जी विच इज़ सर्कुलेटिंग इन द सोसाइटी, कि मतलब ये इनका वर्क जो है एनर्जी कंटेन करके रखता है, जो कि आज तक जो है सोसाइटी के अराउंड सर्कुलेट करता है. देन इन्होंने बताया कि मतलब इन्होंने जो है बताया कि टोटल आर्टिस्ट कौन होता है. टोटल आर्टिस्ट इज़ अ पर्सन हु वेंट थ्रू ट्रेनिंग. कि टोटल आर्टिस्ट कौन होता है, कि ऐसा इंसान जिसने जो है ट्रेनिंग ले रखी हो और ट्रेनिंग ले करके वो कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर पाए, एक अच्छी आर्ट को प्रोड्यूस कर पाए जो कि सोसाइटी के लिए रिसोर्सफुल हो, यानी यूज़फुल हो, रिसोर्सफुल. और साथ ही साथ एक टोटल आर्टिस्ट की क्वालिटी क्या होती है, वो टैलेंटेड होता है और उसके अंदर टैलेंट होता है एक काम को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करने का. देन टोटलाइजिंग सोसाइटी. टोटलाइजिंग सोसाइटी क्या होती है? इट डिस्क्राइब्स नेटवर्क लिंकिंग ऑल ह्यूमन. कि टोटलाइजिंग सोसाइटी क्या होती है, कि ये जो है हर एक इंसान को, भले ही वो ह्यूमन बीइंग्स हो, साथ ही साथ नेचर में जितनी चीज़ें प्रेजेंट हो, साथ ही साथ कॉस्मिक पावर यानी अदृश्य चीज़ें, इन सब को जो है लेकर चलती हो, इन सब को जो है एक साथ जोड़ कर चलती हो, लिंक बना कर चलती हो, उसे बोला जाता है टोटलाइजिंग सोसाइटी. द कन्फ्रंटेशन ऑफ टोटल आर्टिस्ट एंड टोटलाइजिंग सोसाइटी. कि मतलब टोटल आर्टिस्ट का, यानी टोटल आर्टिस्ट का और टोटलाइजिंग सोसाइटी का मतलब आमना सामना से क्या होगा. The confrontation of total artists and totalizing society will result in producing powerful works of art which circulate the social energy. कि स्टीफन ग्रेल बताते हैं कि अगर एक टोटल आर्टिस्ट का मतलब आमना सामना हो एक टोटलाइजिंग सोसाइटी के साथ, तो फिर जो है एक पावरफुल वर्क जो है प्रोड्यूस होगा, जो कि सोसाइटी मतलब जो कि पूरी सोसाइटी में जो है सर्कुलेट करता रहेगा. देन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया है सेल्फ फैशनिंग का, कि टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वंस ओन आइडेंटिटी. स्टीफन ग्रील बताते हैं कि अगर आपको जो है अपनी खुद की पहचान बनानी है, तो आपको जो है अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ सोशली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, कि जो आपकी सोसाइटी ने स्टैंडर्ड्स तय कर रखे हैं, मतलब उस स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर आपको एक अच्छी आइडेंटिटी बनानी है, तो बाय कंस्ट्रक्टिंग योर ओन पब्लिक पर्सोना यूजिंग सोशली एक्सेप्टेड, तो आप जो है अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान एक अच्छी पब्लिक के सामने तब बना सकते हो जब आप जो कि जिस कल्चर में यानी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसके दिए गए स्टैंडर्ड यानी उसके दिए गए नियम कानून को अगर आप फॉलो करोगे, उसे प्रेज़ करो, मतलब उसको इमिटेट करने की कोशिश करोगे, तभी जो है आप इस सोसाइटी में रहकर अपनी पहचान बना पाओगे. अकॉर्डिंग टू स्टीफन ग्रीनब्लैट, बाय कंस्ट्रक्टिंग your own public persona using socially accepted standard, you are trying to imitate a praise model in society. कि आप जो है आपकी सोसाइटी में कोई एक अच्छा इंसान है एंड आप उसे जो है अपना रोल मॉडल समझते हो. जैसे मैं मतलब इस सोसाइटी में रहती हूँ, तो अगर मैं अपना अपना जो है आइडियल मॉडल मैं समझती हूँ मदर टेरेसा को. सो मैं जो है उनके मतलब जो भी उन्होंने प्रीच किया है उन चीज़ों को मैं इमिटेट करती हूँ और अपने बिहेवियर में उन चीज़ों को लाती हूँ. तो क्या होगा कि मतलब मैं अपनी एक अच्छी पहचान मतलब पूरी पब्लिक के सामने बना पाऊँगी. बाय कंस्ट्रक्टिंग योर ओन पब्लिक पर्सोना यूजिंग socially accepted standard, you are trying to imitate a praise model in society. And during Renaissance, upper class प्रैक्टिस सेल्फ फैशनिंग. कि रेनेसा के टाइम पे क्या होता था कि अपर क्लास लोग, एरिस्टोक्रेटिक लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते थे, यानी सेल्फ फैशनिंग को जो है प्रैक्टिस करते थे. देन फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है? रेजोनेंस एंड वंडर. प्लीज़ रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ बुक.
रेजोनेंस एंड वंडर। रेजोनेंस का मतलब है जो वर्क जो हमेशा फॉरएवर रहे, एवरग्रीन वर्क जिसे बोला जाता है, जो हमेशा मतलब मतलब अभी भी और आगे आने वाले टाइम पर भी जो है हमेशा एवरग्रीन रहे, यानी उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसकी वैल्यू कभी ना घटे, उस वर्क को कहा जाता है रेजोनेंस। एंड वंडर का मतलब क्या होता है? when person looks at object of resonance and feels the beauty of those works। ये मतलब अगर हम, वंडर का मतलब ये हुआ कि अगर हम मतलब हमने कोई वर्क को प्रोड्यूस किया है और वो इतना अच्छा वर्क है, तब हम उस वर्क को जो है प्रेज करेंगे और एकदम वंडर करेंगे, मतलब हैरान हो जाएंगे। वो खुशी की हैरानी जो होती है उसे बोला गया है रेजोनेंस एंड वंडर। व्हेन पर्सन, जैसे हम एक किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हम जो है हैरान हो जाते हैं उसकी ब्यूटी को देखकर, सो इस सेंस में बोला गया है कि वंडर, और हम जो है उस वर्क की ब्यूटी को जो है फील करने लग जाते हैं। देन when person looks at object of resonance and feels the beauty of those works। resonance means work which is deep। resonance का मतलब क्या होता है? जो वर्क जो बहुत ज़्यादा गहराई हो, जिसमें मतलब डेप्थ तक हो, एंड लाउड, यानी लोग जो है उसे पढ़कर जो है उसको इतनी ज़्यादा प्रेज करें कि मतलब उस वर्क को जो है हर जगह पे अप्रेजल मिले, अप्रिसिएशन मिले, इस सेंस में इसे लाउड लिखा गया है। और जो वर्क जो है हर टाइम पर एग्जिस्ट करता रहे, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो है कंटिन्यू रहे, उस वर्क को बोला गया है अकॉर्डिंग टू स्टीफन ग्रीनब्लेट रेजोनेंस एंड वंडर। एनी पेंटिंग और लिटरेरी वर्क और एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड इन म्यूजियम, कि अगर कोई भी पेंटिंग, लिटरेरी वर्क या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो कि म्यूज़ियम में डिस्प्ले कर रखा हो बहुत सालों से, उसे कहा गया है रेजोनेंस। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।